your schedule displayed, I think. But maybe some of the students might be having some misunderstanding about this. So we start our class, and those who are not joining, they would be taking their recording. So the topic that is the topic I told you that we are going to be doing some topics which are directly or indirectly related to the topics we have already covered. And I know that many questions are like they are made from such areas, so that's why we are covering this. And as you have idea that last week we started another type of activity that's going to be doing MCQs, and in the next week as well I will be doing these all topics which you should go through. Then definitely I will do what, I will announce a topic, you will prepare the topic, and then we will do the MCQs. That would be your practice. And when we get closer to our exam, then revision practice would be done on letter writing. So we are going to be moving on with the topic, and this topic is, you can say, the addition to the topic we have already done, talking on internet or using electronic media. So this is also the part of it. So it's not directly over there, but you should have idea about it. This is about ICT, that is Information and Communication Technologies. And you know, the basic thing about it is that mostly people think that ICT and IT are the same, but they are different. You can say IT is a general term, but ICT is just related to your communication technologies. That's going to be, in a way, your all gadgets you are using, cell phone, wireless, network, internet. So you just say that ICT is exclusively related to your cell phone, wireless, and network, internet, etc. So over here you see ICT stands for Information Communication Technology. This refers to technology that provide access. Access mean आपको पहुंच हो जाती है to information. आप उस information को पहुंच जाते हो through telecommunication. The word tele, I already told you, इससे लफ्ज television होता है. Tele का मतलब होता है दूर, तो दूर बैठ के communication करना. और ज्यादातर अब telecommunication जो है that's gained popularity. People were working from home, घर से काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सालों से. And some of the people, they are taking part of the work at home and they do part of the work in offices. इस तरह से भी लोग कर रहे हैं, तो ये आपको इससे अंदाजा ही है. अब अगली लाइन लिखी है ICT is similar to IT information but the primary focus on communication technologies, जिसमें सेल फोन, वायरलेस नेटवर्क और सारा इंटरनेट सिस्टम आ जाता है. अब एक और चीज इसमें जो आगे हाईलाइट हुई हुई वो है, in recent years the world has become irreversibly reliant on ICT. यानी अभी जो कुछ साल गुजरे हैं, स्पेशली इन माय लाइफ आई हैव सीन, आप लोग में से जो बिल्कुल यंग हैं उनको तो अभी बहुत ज्यादा इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, बट इट्स गोइंग टू बी, इफ यू गो 15 years बैक तो कहानी थोड़ी फर्क थी. तो अब अगले 5 साल ले लो एंड देन यू टेक 10 years, जो 10 years है उनको हम डेकेड कहते हैं. तो हर डेकेड, हर 10 साल में आपको एक नई चेंज नजर आती है. बट आई वुड से द प्रीवियस डेकेड, जो पिछला 10 साल गुजरा है, उसने बहुत ज्यादा दुनिया को चेंज कर दिया. इतना ज्यादा कर दिया है कि अभी आप यहाँ से देखोगे, हम आज से 7-8 महीने पीछे चले जाएं, साल चलो कर लो, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नवंबर डेट्स थी जब वुहान में पहले पैंडेमिक जो है वो एकदम से करता है, ब्रेक इन करता है. तो वहां से शुरू होता है और हमारी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा बदल गई है, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो इसलिए आप चेंजेस आती हैं, कोई ना कोई पूरी ही दुनिया का ट्रेंड चेंज हो जाता है या टेक्नोलॉजी बदल जाती है. ठीक है, तो चेंजेस आती रहती है. अब आप देखो, अभी मुझे लेटेस्ट नहीं पता व्हाट्स द रिजल्ट. आजकल हमारी पाकिस्तानी कॉम जो इज ऑल अबाउट गोइंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ US इलेक्शन पर है ना, और जिसमें ट्रम्प को जिता रहा है कोई, जो बाइडेन के पीछे लगा हुआ है. बट आई डोंट नो, मिक्स किस्म के एक्सप्रेशन से लोग होंगे. बट यू ऑलवेज सी व्हेन देयर इज अ चेंज, देयर इज चेंज एवरीवेयर. और कभी कभार कुछ ऐसी जगहों पे चेंज ऐसी आ जाती है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है. जैसे वर्ल्ड वॉर्स हुई, कितना चेंज आ गया था. ठीक है, और इसी तरह दुनिया जो है वो चेंज की तरफ हमेशा रहती है. तो हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी है, इन रिसेंट ईयर्स, पिछले सालों में
करीबी सालों में वर्ल्ड हैज बिकम इरिवर्सिबली रिलायंट। देखो, रिलायंट का मतलब है किसी चीज पर क्या करना, रिलाई करना, यानी उस पर इन्हिसार करना। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है जो हम वापस नहीं अब जा सकते। अब हम इतना आगे आ गए हैं टेक्नोलॉजी में कि हम पीछे नहीं जा सकते। कोई बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा दुनिया में, शायद दुनिया खत्म हो जाए, तो फिर हो सकता है कि भाई सारी टेक्नोलॉजी खत्म, जिस तरह मोइंजोदड़ो हड़प्पा की चीजें निकलती हैं कि अच्छा लोग ऐसे रहते थे, इस तरह कोई ऐसी कोई चेंज आए, खुदा ना खास्ता, आप कहेंगे हम भी कहेंगे, तो फिर हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन इसके अलावा आजकल तो आप आगे 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 AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आगे निकल गए लोग। आपकी चीजें सारी रोबोटिक हो गया है सब कुछ सिस्टम। तो दिस इज व्हाट यू आर मूविंग ऑन विद दैट। तो कुछ सालों में ICT पे रिलायंस आपका बहुत ज्यादा हो गया है फॉर कंडक्टिंग बोथ पर्सनल एंड बिजनेस एक्टिविटीज। आप खुद भी अपना सोचे, क्या आपका व्हाट्सएप के बगैर गुजारा है? ना ना। ट्विटर के बगैर, इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं ना हो सकता। तो इसलिए हमारी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, यानी जहाँ से हम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, दो इसको टू बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या इसके अलावा भी हैं, तो हम ज्यादातर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसमें सोसाइटी पीपल जो हैं वो कनेक्टेड हो गए हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जो मैंने आपको CA की बुक से सारा चैप्टर पढ़ाया है इंटरनेट के ऊपर। तो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए थे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दैट हैव ड्राइव्स दैट हैज ड्रिवन द रिलायंस ऑन ICT इंक्लूड। अब आपने एक और से बात समझनी है कि हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड क्यों कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है, क्या चेंजेस आ गई हैं दुनिया में। उसमें सबसे पहले इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपको पहले भी बताया था, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्युनिकेटेड एट वन टाइम, यानी ये आप इंटरनेट के थ्रू जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक वक्त में भेजते हो, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ इंक्रीज हो गया। इसका मतलब पता क्या है कि आपने देखा है कि कंपनीज, हर कंपनी दूसरी कंपनी को काटने के चक्कर में है। दे आर कंपेटिटर्स, दे वांट कि हमसे पैकेज ले, हमसे ये चीजें ले, हमसे मॉडेम लगवा ले, वाईफाई ले ले। तो उन्होंने आपको डाउनलोड स्पीड और डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा दे दी है। इससे लोग जो हैं हर बंदे के इस्तेमाल में है। अब आप देखें कि इवन जो वर्कर्स छोटे छोटे होते हैं उनके पास भी सारा ये पैकेज और चीजें होती हैं, एंड दे कम्युनिकेट दिस वे। उसके बाद है सोफिस्टिकेशन एंड वर्सटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज में आ गई है। सोफिस्टिकेशन कहते हैं ऑपोजिट ऑफ इनएक्सपीरियंस। कोई बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, नाइव जिसे कहते हैं, और सोफिस्टिकेशन कहते हैं बहुत ही ज्यादा उसके अंदर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, महारत है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मल्टी यूज टेक्नोलॉजीज आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन द मार्केट। एग्जाम्पल में टैबलेट कंप्यूटर्स हैं, आपकी एक ही गैजेट के अंदर आपके सारे कुछ फीचर्स मौजूद हैं। अब आप देखें आपके टेलीफोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर कितने फीचर्स हैं। एक ऐसा वक्त होता था कि लोग क्या करते, हाँ हाँ मैंने, आज से कई साल पहले की बात है, लोग कहते मैंने कैमरे वाला मोबाइल खरीदना है, यानी कैमरे जब तक नहीं होगा, सेल्फी नहीं लूंगा, तो पता नहीं फौत ही ना हो जाए कोई बंदा। इस कदर लोगों में क्रेज था, इतना क्रेज। अभी भी बहुत क्रेज है, ऐसी बात नहीं। अब ये है थोड़ी डाइवर्ट हो गया है। अब आप और क्रेजी हो गए हैं तो अब टिकटॉक बनाने लग गए हैं लोग, ठीक है ना। तो ये सब कुछ चलती जा रही है। और इसके बाद एग्जाम्पल्स में टैबलेट कंप्यूटर टेलीफोन स्मार्टफोन आ गए सारे कुछ, इसमें बिल्ट इन कैमराज है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसे कि आप जो है अपने PC को, कंप्यूटर जो होता है आपका पर्सनल, उसको भी यूज कर सकते हैं। हैंड फ्री है चीजें और सारा कुछ। व्हीकल्स के अंदर, यानी जो गाड़ियां हैं उनके अंदर सब कुछ लगा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाज में पहले आप नहीं करते थे, अब आप जहाज में भी सब कुछ यूज करने का है। जैसे जैसे जहाज आपका उड़ पड़ता है तो यू कैन जस्ट बी देयर। तो आपका ये सारा सिस्टम जो है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। इसके बाद न्यू बिजनेस मॉडल बन गए। अब मॉडल से मुराद यहाँ पर है कि नए बिजनेस के तरीके हमें आ गए हैं। उसमें क्या तरीका आ गया? नंबर 1 है ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क। ऑफ शोरिंग हेल्प डेस्क का मतलब है दूसरे मुल्कों में लोग आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में। और इसकी मिसाल सबसे बड़ी है आपके कॉल सेंटर्स, ठीक है। और वहां पर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा है, उसकी कंपनी सिंगापुर में है, एक उसकी दूसरे की अमेरिका में है, एक की इंग्लैंड में है। वो अपने वर्कर्स को, लोकल वर्कर्स को पैसे क्यों दे इतने ज्यादा
उस करेंसी में, क्यों ना वो कन्वर्ट करे, तो कितना फायदा उसको हो जाए, ठीक है ना। जैसे डॉलर्स में जो लोग कमाते हैं और जब वो कन्वर्ट करते हैं तो उसको खर्च करने में उन्हें दुख भी नहीं होता कि पाकिस्तानी बेचारे 159 या 160 के करीब आजकल रेट है, वो आपका डॉलर जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, ऑफशोर दूसरे मुल्कों में हेल्प डेस्क कस्टमर सर्विस सेंटर खोल दिए हैं, कॉल सेंटर की शक्ल में। वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो आपकी बताते हैं, गाइड करते हैं। अब इसमें यह भी हो जाता है बाजुकात कि आप अपनी कंट्री में ठीक तो आप अपने मुल्क में ही करेंगे। अमेरिका में शिकागो से कॉल आती है, अब शिकागो से कॉल आती है कि जी मैंने आपसे खरीदा था आपके आउटलेट से, जो आउटलेट उसके घर से कोई 30 माइल्स के फासले पे होगा, ठीक है। उसे उसको कॉल करने की बजाय उसके पास नंबर जिसका है वो किसको कॉल कर रहा है, वो इंडिया में कोई किसी कॉल सेंटर में बंदा उठा रहा है। वहां सुबह है यूएस में और इंडिया में रात है। रात को फोन उठाता है और वो जाहिर है रात की उसकी ड्यूटी है, वो पूछता है, बताता है जी मैंने आपके फलान जगह से सेंटर खरीदा है और आपकी प्रॉब्लम है। उसने कहा ठीक है मैडम या सर, हम आपको कॉल बैक करते हैं फलान टाइम तक। वो वहां के सेंटर जो सर्विस सेंटर में कॉल करेगा और फिर उसको दोबारा कॉल करके बताएगा कि थोड़ी देर में आपका हमारा रिप्रेजेंटेटिव या हमारा पर्सन जो है वो आपके पास आ रहा है, या आप ड्रॉप करना पसंद करेंगे तो आप कोई टाइम बता दें। यानी कहने का मतलब है ये सारी गुफ्तगू यूएस से यूएस में भी हो सकती थी, लेकिन हमने पैसे बचा लिए, ठीक है। तो ये सारा हुआ टेलीकम्युनिकेशन से, इससे आपकी रिड्यूस होगी कॉस्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपके पास एडवांस है, आपके पास फुल टाइम इंटरनेट सर्विस है। आप चाहे अपने नेबर में कॉल करें, चाहे आप 7 समंदर पार कॉल करें, इट डजंट मेक डिफरेंस। तो इससे आपकी लेबर कॉस्ट कम हो गई और ट्रेडिशनल होम कंट्री बेस्ड टेलीफोन हेल्प डेस्क बीइंग मूव्ड ऑफशोर टू ईस्ट यूरोपियन सेंट्रल एशियन लोकेशंस। ये कुछ वैसे कंट्रीज का नाम दिया है, लेकिन सिर्फ आप इसका आइडिया समझ लो कि ऑफशोरिंग हेल्प डेस्क का मतलब है दूसरे मुल्कों में अपने कॉल सेंटर बनाना, दूसरे मुल्कों में आपने कस्टमर सर्विस देनी है टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग, ये एक और बिजनेस मॉडल है। अब ये जो बिजनेस मॉडल का मतलब है बिजनेस करने के नए नए तरीके हमें आ गए। अब इसमें आपने ये देखिए ग्रोथ ऑफ ऑटोमेटेड कॉल आंसरिंग क्या है। आप कहीं कॉल करते हैं, जब भी मिसाल के तौर पर आपने पता करना है अपनी फ्लाइट का, ठीक है, आपका नंबर है जहां जिस एयरपोर्ट पे भी है, आपने जी अपने एयरपोर्ट पे कॉल की, वहां पे किसी पर्सन ने आपका फोन नहीं उठाया, बल्कि उसके अंदर पूरा प्रोग्राम फीड हुआ हुआ है और उसके ऑटोमेटिक कॉल आंसरिंग है। वो आप कहेंगे थैंक यू फॉर कॉलिंग कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अलामा इकबाल एयरपोर्ट, जो भी आपके एयरपोर्ट है, आपको किया। आपको फिर अगर वो ये भी कहेगा कि आपने उर्दू में मालूमात लेनी है या उसमें लेनी है, अगर आपने उर्दू में लेनी है तो ये बटन दबाएं। आप वो बटन दबाते हैं, फिर वो अगली बात होती है कि आपने फ्लाइट जो है डोमेस्टिक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन लेनी है या आपने इंटरनेशनल की लेनी है। आपने कहा जी मैंने इंटरनेशनल की लेनी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब उसके लिए भी बटन दबाया। फिर उसने पूछा कि तुमने इनकमिंग फ्लाइट है या डिपार्चर की, आपने कहा नहीं जी डिपार्चर की। तो करते कराते आप सारे ही मसले आपके हल हो गए। कहाँ पर? उसी की पैड के ऊपर। टेलीफोन का मेन मेन्यू होता है और एक सब मेन्यू। मेन मेन्यू में आपको मेन नंबर आप करते हो और सब मेन्यू ये आपको लिखा नजर आ रहा है, सब मेन्यू। उसके बाद नंबरिंग 1 2 3 दबाते हो और फिर आप एक्सेस मीन यहाँ लिखा है, एक्सेस नजर आ रहा है, एक्सेस करते हैं थ्रू टेलीफोन कीपैड। और लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी, इसकी ये जो लफ्ज है यानी आखिरी हल ये होता है कि आप किसी भी पर्सन से कनेक्टेड हो जाते हो। मिसाल के तौर पर मैंने पूछ लिया जी डिपार्चर, उन्होंने कहा जी आपकी फ्लाइट जो है 2 घंटे लेट है, ये तो आ गया मुझे मैसेज। अब मुझे कंफर्म करना है भाई, या आपकी फ्लाइट अभी एक्सपेक्टेड डिले है। अच्छा एक्सपेक्टेड डिले कितना है, तो मुझे कोई बंदा ही जवाब देगा ना। तो उस पर जितना प्रोग्राम फीड हुआ था वो तो मुझे बता दिया उसने। तो मैंने फिर 0 दबाया, यूजुअली 0 होता है जिसमें आपने किसी लाइव जो पर्सन है उसको आप रिसीवर रिसीव करता है आपकी और आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सारी कुछ आपने एक बहुत बड़ा, अब नीचे उसने लिखा है सपोर्टर्स ऑफ दिस सिस्टम से इट सेव्स कॉस्ट एंड फिल्टर हाई वॉल्यूम ऑफ कॉलर्स। इतनी ज्यादा कॉलर्स की तादाद जो आपने वहीं पे मैनेज कर ली, जिन्होंने किसी
पर्सन की जरूरत नहीं है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि सारे लोग एक ही फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कई फ्लाइट्स आ रही हैं, कई जा रही हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स आ रही हैं, तो इंफॉर्मेशन लेकर लोग वहीं से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इससे लिखा हुआ है इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव लेने से एलिनेट्स का मतलब है जुदा कर देना, किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना। यूं कह ले कि आपका कस्टमर बाज़ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब कोई पर्सन नहीं उठाता, बल्कि मशीन ही आगे से बोल रही है, कॉल आंसरिंग हुई जा रही है। ठीक है, यू नीड somebody who should talk to you। इसके बाद जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपका पीटीसीएल खराब हो गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि दिल चाहता है कि ठीक नहीं हो रहा, तो इसको खूब सुनाऊं मैं। अब सुनने के लिए होना चाहिए ना कोई बंदा। ठीक है ना, पाकिस्तानी लोग वैसे भी हम दिल के हल्के बड़े हैं, फटाफट हमें कुछ ना कुछ सुना देना होता है, उसके लिए आपको एक पर्सन चाहिए होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ई कॉमर्स, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, ई कॉमर्स एक और मॉडल है, बिजनेस मॉडल। अब मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कंपनी आप भी कंपनी, मिसाल के तौर पर, तो हमें क्या करना है, हमें ऑनलाइन खरीदारी करवानी है लोगों से। ठीक है, और बाइंग करवानी है, तो मुझे ई कॉमर्स चाहिए। उसके लिए बैंडविड्थ, सिक्योरिटी, और आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो एसएसएल, आपको सिक्योर सॉकेट लेयर आपको सिखाया था कि आपका ई कॉमर्स जो है उसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर है, जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आप डालते हो अपने कीपैड से इंफॉर्मेशन डालते हो, वो कोड में कन्वर्ट हो जाती है। वो ऐसी लेयर है, ऊपर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और वो कन्वर्ट करता है कोड में, और वो कोड डीकोड होते हैं, फिर आपके रिसीवर के पास वो इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो इस तरह से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। और उसने यहाँ लिखा है वर्ल्ड इज जेन्युइनली बिकमिंग, यानी सचमुच में वर्ल्ड इज बिकमिंग ग्लोबल मार्केट प्लेस। ग्लोबल मार्केट प्लेस में पूरी दुनिया एक मार्केट प्लेस है। क्या तुम कहीं से कुछ खरीदना चाहते हो, चलो पैसे खर्च करो, चलो ऑर्डर करो, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, दुनिया में से कहीं कोई चीज खरीद सकते हो। कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई एजुकेशन खरीदनी है, कोई तुमने गाड़ी बुक करानी है, करा लो घर बैठे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में ये कहा गया है, ये सारी टेक्नोलॉजी बड़ी आसान तो हो लग रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 है बोथ पर्सनल बिजनेस एक्सपेंस में बी प्रोहिबिटिवली हाई। प्रोहिबिटिवली, वैसे प्रोहिबिट करना मना करने को कहते हैं, या प्रोहिबिटिवली हाई मीन बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। टू कीप पेस का मतलब है अपनी रफ्तार जोड़ के रखना किसी के साथ। विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, हम अपनी बदलती हुई टेक्नोलॉजीज के साथ इतना नहीं भाग सकते। अब तो दुनिया हर वक्त नई से नई आ गई है। हर रोज आप देखिए, आपने अपना ऑफिस रेनोवेट कराया, आपने ये चीजें लगवाई, अगले दिन एक बस 2 साल के बाद ही आप देखते हैं, बल्कि साल के बाद ही नई चीजें आ गई। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी और ज्यादा तेज हो रही है। हर रोज आप देखते हैं कौन सा फीचर आ गया मोबाइल में, आईफोन में क्या फीचर्स आ गए हैं। तो ये आप चेंजेस में कितना भाग सकते हो, बड़ा एक्सपेंसिव है। और इससे कहता है इनिशियल परचेज रिलेट्स टू बोथ इनिशियल परचेज, शुरू की परचेज आपकी, और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब है बाद में आने वाली, और मेंटेनेंस कॉस्ट, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके अंदर जो चेंजेस आती रह रही हैं, वो कौन इतनी ज्यादा कर सकेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। उसके बाद पीपल एंड कस्टमर में सिंपली प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब आपकी ऑनलाइन बाइंग सेलिंग सारी धरी की धरी रह गई नेगेटिव फीचर्स के अंदर, या आपका जो आपने लोगों से सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए बात करनी है, वो सारा बेकार है। आप में से कुछ ऐसे कस्टमर मिलेंगे आपको जो अभी भी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, ऑर्थोडॉक्स मीन पुराने रवायती। वो क्या करते हैं, दे वांट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। खुदा के लिए कोई सामने बैठा हो, मेरी बातों का जवाब दे, तो यू नीड टू टॉक टू समबडी। इसके बाद है पीपल एंड बिजनेस में लैक द नेसेसरी स्किल्स। ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं उनके अंदर बेसिक स्किल्स नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है अबाउट कि व्हाट टू बाय एंड हाउ टू यूज। ये बहुत बड़ा मसला है। ये वही बात है कि एक सेठ के पास पैसे तो बहुत हो, ठीक है, लेकिन या कोई जागीरदार है या सेठ है या कोई भी लेने आप, बिजनेस करने वाला पर्सन, उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन टेक्निकली कुछ नहीं आता। लोग उसको लूट के भी खा सकते हैं। वो कहते हैं सेठ साहब ये कैमरा लगवा लेंगे, जबरदस्त है, अच्छा लगवा लिया,
उसके बाद देखा सारा सिस्टम ही खराब है, क्योंकि टेक्निकली में आता ही कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास बेसिक स्किल्स नहीं है, आपको नहीं पता किस वाले टेक्नोलॉजी में आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप हमेशा गलत कर लेते हो। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर बंदा हर चीज में माहिर हो। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन वेरी सब्सटेंशियली। अब स्ट्रेंथ मीन ताकत, क्वालिटी, इंटरनेट की क्वालिटी हर जगह, सब्सटेंशियली का मतलब है लार्जली, ठीक है। सब्सटेंशियल चेंजेस जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी चेंजेस आ गई। तो सब्सटेंशियली लार्जली अराउंड द वर्ल्ड आपका इंटरनेट कनेक्शन फर्क है। मिसाल के तौर पर आपकी तरफ से ठीक आ रहा है, हमें नहीं पूरा रिसीव हो रहा, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं है, थका हुआ इंटरनेट है, आपका थका हुआ है तो हमें नहीं आ रहा। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये वाले प्रॉब्लम पहले, आज से कुछ साल पहले कॉल सेंटर्स में भी बहुत आम थे, ठीक है। अब आप देखें टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा फास्ट, रिफाइंड। अब 4G की बातें, फिर आपने 5G की बातें, आप ये सारी बातें जो है हम करते हैं ना, तो ये सारा कुछ क्या है, इट्स चेंज, इट्स चेंज, इट्स चेंज। उसके बाद सिग्निफिकेंट एंड जस्टिफाइबल कंसर्न्स एग्जिस्ट अराउंड द ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। और सिग्निफिकेंट, बड़े बड़े, जस्टिफाइबल, हाँ ठीक है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं या उसको हम प्रूव कर सकते हैं। कंसर्न मीन मसाइल अराउंड ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट यानी हमें बड़ा खतरा है, कोई भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है या हमारे पैसे लूट सकता है। इवन आप छोटे छोटे, आप देखिए मसलों में, छोटे तो नहीं खैर, जिसके साथ हो जाता है बहुत बड़ा मसला, एटीएम आपने किया, आपके उसके बाद सारी पैसे ज़ाया हो गए, किसी ने आपका हैक कर लिया अकाउंट, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल। इसी तरह अभी मुझे कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है बता रहा था, कोई स्कूल में है बच्चा, तो ही वाज सेइंग कि अभी कितने हम लोग के ग्रुप्स बने हैं ना, जैसे आप भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो। तो उसने एक बड़ी बात बताई कि एक टीचर्स थे, तो उनको एक ना आजकल एक पता नहीं क्या सिस्टम आया हुआ है, तो ग्रुप के अंदर से एक मैसेज कोई बच्चा जैसे कोई करता है कि जी आई एम सॉरी सर, आपके पास ना मेरा एक 4-5 डिजिट का कोड आ गया है, ये मुझे सेंड कर दे। तो गलती से आ गया, वो जैसे ही सेंड करता है, उसका जो सारा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। अब जो सुबह उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ, ही वाज दैट मोमेंट टीचिंग क्लास, केमिस्ट्री के टीचर थे कि मैथ्स के थे, तो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनका हैक हो गया। उन्होंने फौरन ही जो सारे जो थी ना कोऑर्डिनेटर थी, डिफरेंट स्कूल्स में ये कोऑर्डिनेटर है, उनको उन्होंने कहा कि ये ओ ए लेवल्स के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप ना एकदम से, यानी कहा कि सबको मैसेज किया, कि कॉल की कि मुझे जिस जिस ग्रुप में मैं हूँ मुझे आप डिलीट कर दे, निकाल दे उसमें से। उन्होंने उसमें से उसको निकाल दिया, ठीक है। अब वो खातून ने जब जैसे ही निकाल दिया, तो 4 ग्रुप्स में निकाल चुकी थी, 5वें ग्रुप में आया कि जो खातून है ना, मसलन मसलन मैं नाम नहीं भी बोल रही, मसलन उनका नाम है सारा फॉर इंस्टेंस। तो मिस सारा ने, सारे लोगों ने देखा, और भी टीचर्स ने देखा जो कि उस ग्रुप में थे, कि एक ग्रुप से उस सर को निकाला, दूसरे ग्रुप से निकाला, तीसरे से निकाला। अब चौथे में क्या आता है कि वो जो सर ने उसको निकाल दिया। अब क्या कंफ्यूजन फैल गई, ये अभी परसों तरसों की बात है, somebody was discussing with me, और बात ये फैल गई कि जी दोनों की लड़ाई हो गई। समझ मेरी बात को, मिस सारा जो है और वो जो सर हैं, उन दोनों की लड़ाई हो गई है, उन्होंने इस तरह एक दूसरे को ग्रुप्स में से निकाल दिया है। तो आपको बताइए, तो छोटी सी बात है ना, अभी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वाकई में ट्रस्ट और सिक्योरिटी और पैसा, ये मसले बहुत ज्यादा हो गए। इसलिए हमें जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान करना चाहिए, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो मैंने आपका शुरू किया हुआ था एक पार्ट ए के नाम से, वो आपका सेट कंप्लीट हो गया। इस पेज पर जितने टॉपिक्स हैं पूरे हो गए। अब मैं क्या करूंगी कि मैं आपको इसको, शायद मेरे ख्याल है एक आध नीचे पॉइंट लगता है कि नहीं है, अच्छा नहीं, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हम दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले, आपको याद होगा हम क्या करे थे, हम पढ़े थे एमसीक्यूज कर रहे थे। वो एमसीक्यूज का सेट है 40 एमसीक्यूज का। जैसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, आई थिंक मैंने आपको सेट 1 भेजा है कि नहीं, आप मुझे जरा टेस्ट 1 के नाम से, अगर नहीं भेजा तो जरा मुझे आप जरा प्लीज बता दें। अपने जो लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे बता दें कि नहीं मिस आपने टेस्ट 1 जो था, यानी एमसीक्यूज का सेट नहीं भेजा।
और आपको ये दूसरा सेट ये भी आज मिल जाएगा, ये जो हमने पढ़ा है इसकी बस एक रीडिंग कर लेना, और जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना वो आपने प्रोमिनेंटली, अभी मुझे जवाब आगे नहीं भेजा, ओके, मुस्कान कह रही है कि नहीं भेजा, ओके गुड, आप अच्छा है जवाब आपने दे दिया, मैं आपको अभी क्लास के बाद जो है भिजवा दूंगी, ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद। तो और जहां तक बात है नमाजों की बच्चों, अब थोड़ा सा आप किसी से मशवरा से कर लें, रिलीजियस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, बट क्लास में स्टार्टेड 3:10, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में और असर की नमाज और पीछे चलती जा रही है, और इसी तरह मगरिब जो है वो और पीछे आ रही है, तो इंशाल्लाह हमारा ये टाइम जो है वो बहुत ही सेट रहेगा, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट पीपल कि उनको मैं कहती हूँ तो वो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने भी लास्ट टाइम मुझे कहा था कि टाइम इसका चेंज करें, तो मैं आपका जो है इसलिए ही किया है, ठीक है। तो आज हम टेस्ट 2 जो हम कर रहे थे, टेस्ट 1 भी भेज दूंगी, टेस्ट 2 उसके सोल्यूशन और दूसरा भी, और फिर आप उसमें खुद भी जिन्होंने नहीं किया होगा मेरे साथ वो खुद करेंगे और फिर उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें अब सिलसिला ये भी आएगा रिवीजन के साथ ही, और मुझे ये भी यकीन है कि जब एमसीक्यूज करते हैं ना तो एक किस्म की रिवीजन भी बहुत सी चीजों की हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर टॉपिक वाइज भी करा दूंगी, ताकि उसमें से कुछ तो चीजें मैं आपको सेल्फ टेस्ट से या जो आपके पास 1000 BC है उससे और भी कुछ जगहों से आपको लेकर आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। और आई थिंक इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो कि, और मुझे ये भी पता है कि किस तरह के सवाल बहुत ज्यादा कॉमनली आ रही है, वो भी मैं आपको इस तरह बता भी दूंगी कि ये देखिए ये सवाल नोट कर ले, ये सवाल आपको बिल्कुल बार बार आ सकता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी, और अभी हम जब पढ़ते हैं ये वाले तो इससे बहुत हमें फायदा हो जाता है कि हमारी वोकैबुलरी भी बेहतर हो रही है, ठीक है, इससे आई होप, और इसके साथ साथ हमें करना भी आ रहा है काम। तो अब हम चलते हैं, 15 सवाल मुझे याद है, मैंने नोट अपनी डायरी में किया हुआ है कि हमने टेस्ट 2 हम कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब हमने 16th क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले 16th क्वेश्चन है, इसमें आप गौर कीजिएगा, कुछ चीजें लॉजिकल, कुछ चीजें कॉमन सेंस, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ योर नॉलेज, तीनों चीजें मिलकर एमसीक्यूज का जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये पहले आप करेंगे, मैं फिर आपके साथ सोल्यूशन सारा शेयर करूंगी। ये 16 से शुरू करके 40 तक आपके पास क्वेश्चन है, तो यानी आपके पास 25 क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अभी हम आराम से तसल्ली से ये करेंगे, और फिर हम जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर दोबारा अगला सेट पढ़ने, जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये सवाल आ गया, अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करते जाओ, क्योंकि जवाब आपको इसी तरह ही आप जवाब मेरे साथ चेक करेंगे, आप देखेंगे कि जी मेरा 16 ठीक था, 17 ठीक था, नहीं था तो क्या मसला आया, वो आप देखेंगे। और इस पूरे सेट में 25 क्वेश्चन के सेट में सिर्फ 3 ऐसे सवाल हैं जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए, अगर आपको उसके जवाब आए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, अगले वीक में मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ानी है, ठीक है। बाजुकात होता है कि हमें जनरली चीजों का नॉलेज होता है, तो वो इस किस्म के सवाल हैं, लेकिन चूंकि मैंने टॉपिक पढ़ाना ही है तो वो टॉपिक वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी, क्या पढ़े हम, इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी। इंटरकल्चरल का मतलब है हम मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से बात कर रहे हैं, इज एसेंशियल इन टूडेज कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। आज के दौर में इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, बिकॉज आगे डैश आपके पास आगे है, द वर्क वाज गेटिंग मोर डिवर्स डे बाय डे, डिवर्स का मतलब है वैरायटी हो जाना, वर्कफोर्स का मतलब है इम्प्लॉइज, इम्प्लॉइज जो है उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा हो गई है, लोग डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, डिफरेंट कल्चर से आए हैं। द वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू श्रंकन ग्लोबल विलेज, दुनिया श्रंकन मीन सुकड़े हुए ग्लोबल विलेज बन गई है, पूरी दुनिया एक छोटा सा विलेज बन गई है। आप कहेंगे कहाँ से छोटा सा बन गई है, भाई टेक्नोलॉजी की वजह से आप किसी से किसी वक्त कभी भी बात कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिक्रीजिंग फिजिकल डिस्टेंसेस, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चेक, अच्छा आप जवाब दे रहे हो 16D आप आंसर,
एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल आप लगाते जाओ, अभी मैं कुछ नहीं बता रही। सवाल है इंप्रूविंग इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी is essential in today's corporate environment because of these reasons। आपने कहा जी डी, ओके लगा लिया। जैसे कहते हैं ना लॉक कर दें इसको, जैसे वो पता नहीं कौन सा प्रोग्राम आता है, पता नहीं जियो पाकिस्तान है, जीतो पाकिस्तान है, पता नहीं क्या है कोई। आई हैव हर्ड तो वो कहते हैं कि जी लॉक कर दें आप, जी लॉक कर दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद आपने अगला देखिए, आई कॉन्टेक्ट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पता है ना आपको, आंखों में देखना, आंख से आंख मिला के बात करना, ठीक है। इन डिफरेंट कल्चर्स मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट सिग्निफाइज डिफरेंट मीनिंग। इन मुस्लिम वर्ल्ड मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट व्हेन स्पीकिंग टू एल्डर इज कंसिडर्ड। अगर हम बड़े एल्डर्स, और कीजिएगा, अगर बड़े लोगों से हम मेंटेन कर रहे हैं आई कॉन्टेक्ट आंख से आंख मिला के बात कर रहे हैं, तो क्या कंसिडर होता है? आंसर चेक करो, रूड, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रही, आप कर रहे। अगला है जी 18, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन इन अ मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ। अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उसे मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उसमें कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आ गया, क्यों, किसकी वजह से? टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, सबको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, ग्रामेटिकल कोई एरर्स आ गए, या मिसअंडरस्टैंडिंग इन कल्चर आ गई। इनमें से आप देखिए क्या है। 18 भी हो गया, आगे चलिए। सक्सेसफुल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कैन बी एंश्योर्ड बाय। अब successful intercultural communication can be ensured by what? Asking lot of question about cultures, be open toward culture, understanding that differences exist between cultures, all of the above। अच्छा जी, आगे मैं 3 क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, आप खुद ही स्क्रीन से पढ़िए, करें क्योंकि अजान हो रही है। क्वेश्चन 20 खुद ही करें। जी 22nd क्वेश्चन पे हम हैं। एथिकल कम्युनिकेशन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। एथिकल कम्युनिकेशन क्या होती है आपको पता है? जिसमें एथिक्स का इस्तेमाल हो, यानी अखलाक का इस्तेमाल। और ये आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था कि एथिक्स क्या डिमांड करते हैं आपसे। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स पे सवाल बहुत आते हैं आपको। एथिक्स आर द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, आपके रवैयों का जो असूल है उसे एथिक्स कहते हैं। और वो हर पर्सन, हर यानी जगह पे फर्क होते हैं। तो एथिकल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बिकम एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मैनेजर्स के लिए ड्यू टू कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉइज, डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स एम्प्लॉइज के, वेरिंग फैमिली वैल्यूज एम्प्लॉइज की, या ऑल ऑफ द अबव। जी 23 देखिए। In real world, decisions taken in organization not perfect because क्यों? असल में डिसीजंस जो है वो इतने परफेक्ट नहीं हो पाते।
अगर नहीं हो पाते तो क्यों? देयर इज अ लैक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, उनके पास कमी है सॉफ्टवेयर्स की जो एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, या कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर, या पीपल ऑर्गेनाइजेशन लैक डिसीजन मेकिंग स्किल, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, सवाल पे फोकस करना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। अच्छा जी, 24 पे आ जाएंगे। एक्सपर्टीज इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। देखो, आप क्रिएटिव थिंकर हो, आप नई बातें सोचते हो, इसमें महारत जो है फाउंडेशन है, महारत होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद, जो अगर क्रिएटिव थिंकर है तो वो क्या करता होगा? आप 4 ऑप्शन देखिए। एबिलिटी टू असेस द नोन, नोन मीन जो पहले से मौजूद हो, इन डिफरेंट एंड वाइडर पर्सपेक्टिव्स, बड़े बड़े यानी वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, यूजिंग सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सॉफ्टवेयर यूज करता है, या स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस करता है, या नन ऑफ द अबव है। देखिए कौन सा जवाब होना चाहिए। अच्छा जी, आगे देखते हैं 25 में क्या लिखा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकर क्या हो सकती है? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको। जो क्रिएटिव थिंकर है वो नई बातें सोचता है, क्रिटिकल थिंकर जो है वो एनालिसिस करता है। ठीक है, इसमें है, अब जब एक लफ्ज आया है ना, दैट द फॉर्मर इज मैनुअल एंड द लेटर इज मैकेनिकल, इस बात का मतलब समझते हैं आप? फॉर्मर का मतलब है जिसका जिक्र पहले आया है। अब ऊपर वाली लाइन में किसका जिक्र पहले आया है? क्रिएटिव थिंकिंग का। और लेटर मीन जिसका जिक्र बाद में आया है। किसका जिक्र आया है? क्रिटिकल थिंकिंग का। ठीक है, अच्छा जी, फिर दैट द फॉर्मर इज डन ऑन अ पर्सनल लेवल एंड द लेटर इज डन ऑन ग्रुप लेवल, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो पर्सनल लेवल पे होती है, ग्रुप लेवल पे होती है। फॉर्मर इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव होता है जो अपनी पसंद लगाता है। लेटर इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वो होता है जो अपनी पसंद नहीं लगाता, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये बात आपने नोट कर लेनी है बात। जैसे कहते हैं ना, आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी आप अपनी पसंद नापसंद बीच में लेके आते हैं, और किसी की ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो तो वो अपनी पसंद नापसंद बीच में नहीं लेके आता। और बोथ थिंकिंग प्रोसेसेस आर द सेम, आपने ABCD लगा दिया। 26 क्वेश्चन आप देखिए, ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी रिकॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा इसको। ओरल रिटन कम्युनिकेशन के डिफरेंस पे बहुत सवाल आते हैं, वो मैं आपको और कराऊंगी। लिसनिंग पे बहुत आते हैं, वो भी मैं आपको बहुत ज्यादा कराऊंगी, ताकि आपका कोई भी एरिया खत्म ना हो उसमें। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी रिकॉर्ड्स व्हिच कैन बी एक्सेस बाय अदर्स। ओरल कम्युनिकेशन जो है उसे कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी रिकॉर्ड व्हिच कैन बी एक्सेस बाय अदर, जिसे दूसरे लोग एक्सेस कर सके। दिस वर्क्स एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता तो ये जो ऊपर फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ये वर्क कर रहा है एज अ डबल एज स्वॉर्ड, दो रुख वाली तलवार। एज इट हेल्प्स इन अचीविंग dash of the message but at the same time prevents dash of the message between the sender and listener। अब आप देखिएगा इसमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको शायद मेरी बैकग्राउंड से कभी आवाजें आती हो, ये हमारे नेबर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी आवाज बहुत आती है जी। कर लिया आपने? 27 पे चले जाइए। इफ द टारगेट ऑडियंस ऑफ अ मैसेज इज लार्ज, यानी मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक है, या कोई भी बंदा जिसे मैसेज दे रहा है उसका ऑडियंस मीन रिसीवर बहुत ज्यादा है, लार्ज है, डिस्पर्स्ड जोग्राफिकली, और वो डिफरेंट इलाकों में मौजूद है। डिस्पर्स जोग्राफिकली का मतलब है उसका जोग्राफिकली यानी
दुनिया के मैप पर इधर उधर बिखरे हुए लोग। द बेस्ट चॉइस फॉर कम्युनिकेशन अवेलेबल टू द सेंडर ऑफ द मैसेज इज डैश कम्युनिकेशन। ऐसी सूरत हाल में आप कैसी कम्युनिकेशन करेंगे? ओरल करेंगे, रिटर्न कर लेंगे, दोनों में से कोई भी कर लेंगे, या दोनों में कोई भी नहीं करेंगे? आसान सवाल है, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, बिजनेस मीटिंग्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। बहुत बिजनेस मीटिंग पॉपुलर हो गई हैं इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन। दे आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है नए आइडियाज जनरेट करना, ज्यादा क्रिएटिव होना। और तब करते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग जब लोग मिलकर बैठते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, आइडियाज नए नए सोचना। तो वो कहा जा रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। While a meeting is mode of oral communication, the document which constitute बनाना, the written form of communications preceding and succeeding the meeting। मैं इसलिए आपको ये सारे करवा रही हूँ कि आपको मीनिंग शायद ना आते हो। प्रिसीडिंग मीन पहले आना, सक्सीडिंग मीन बाद में आना। आपने प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स लफ्ज सुना हुआ है ना? प्रीडिसेसर्स क्या होते हैं? आपके पहले आते हैं, जैसे कोई एक बादशाह, उसके पहले कौन थे, अबाउट दैट। और सक्सेसर्स होते हैं जो बाद में आते हैं। ठीक है, तो जैसे आप अभी जैसे आप इलेक्शन, जैसे अभी मैंने बात की कि आप कहेंगे कि जी ट्रम्प का सक्सेसर कौन होने जा रहा है, तो आप कहेंगे जो बाइडेन, तो बाद में आने वाले। तो अब प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग मीटिंग, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनके नाम क्या है? डैश एंड डैश। रिस्पेक्टिवली क्यों लफ्ज यूज करते हैं हम सवालों में? रिस्पेक्टिवली का मतलब है उसी तरतीब से। इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल और दे देती हूँ, इसका यूज बहुत आता है पेपर में, इसलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल सिखा रही हूँ। कि आपने एक वर्ड यूज किया है, आपने कहा कि स्टूडेंट रोल नंबर 1 2 3 बैठ जाएं सीट नंबर 23 24 25 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब इसका हुआ? 1 वाला 23 पे बैठेगा, 2 वाला 24 पे बैठेगा, एंड 3 वाला 25 पे, जो मैंने नंबर बोले, तो वो तरतीब से बैठ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसमें क्या आना है। प्रेस रिलीज, एडवर्टाइजमेंट, एजेंडा, मिनट्स, प्रपोजल, मेमोरेंडम, नन ऑफ द अबव। 29 करते हैं। द पर्सन प्रिजाइडिंग अ मीटिंग, प्रिजाइडिंग मीन जो मीटिंग को चला रहा होता है, मीटिंग को कंडक्ट करा रहा है, उसका लीडर होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 नाम है, जरा चेक कर लो। सबसे बेहतर आंसर को करना है, ठीक है? ओके, डन। 30th क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। इसमें क्या है कि मिस हिना है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जिस खातून का स्टेटस नहीं पता कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके नाम के साथ MS लगाते हैं, मिस। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना? तो उसको आपने मिस लगाया है। एक मिनट, मैं खाली क्वेश्चन जो है वो मैंने इसको जरा बड़ा किया है इसलिए, ताकि आप आराम से पढ़ सके। ठीक है, मिस हिना, मैनेजर फाइनेंस, फ्रेश फूड लिमिटेड पे। टुडे इज द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग आ गई ऑफ हर कंपनी। सडनली द CEO ऑफ द कंपनी, CEO कौन होता है? ज्यादातर क्या होते हैं? मालिक होते हैं, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, और अगर COO हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CFO हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभार लेटर के सिनेरियो में लिखा हुआ आता है डेजिग्नेशन। सडनली द CEO ऑफ द कंपनी वॉक्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है एंड आस्क्स मिस हना टू अपडेट द बोर्ड अबाउट द न्यू IT सिस्टम। मिस हना से कहता है
कि नए आईटी सिस्टम के बारे में लोगों को क्या करे, ब्रीफ करे, उनको समझाए, उनको बताए, अपडेट करे. बीइंग इम्प्लीमेंटेड, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन द कंपनी फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए. मिस हेना हैज नो प्रायर नोटिस, उसे पहले कुछ नहीं बताया गया था. प्रायर मीन पहले. दैट शी विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक टू द बोर्ड, कि उसे बोर्ड से बात करनी है, उसको एड्रेस करना है. इन दिस सिचुएशन शी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड. हमने ये प्रेजेंटेशन में पढ़ा तो है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको रिपीट अभी करवा दूंगी. लेकिन मैंने अभी आपको एक स्पीचेस वाला टॉपिक भी कराना है, उसमें ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा. तो शी विल बी गिविंग द प्रेजेंटेशन टू द बोर्ड यूजिंग विच मेथड ऑफ ओरल डिलीवरी, मेमोराइजेशन, क्या उसको याद था, बोला है. इम्प्रॉम्प्टू, क्या वो इम्प्रॉम्प्टू एंड एक्सटेम्परेनियस, आप एक दफा कर लो, निशान लगा लो. एंड रीडिंग, कि इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगी. मैं अभी आपको आंसर करते वक्त गाइड कर दूंगी. अभी आप गेस कर लो कि क्या होना चाहिए. अगर आपको पहले से भी आता है तो दैट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है जी, आपने लगा लिया. आगे चलते हैं. लिखा है 40 क्वेश्चंस हैं ये. इफ द ऑडियंस ऑफ द स्पीच आर पॉजिटिव टुवर्ड द स्पीकर, अब स्पीच के ऑडियंस पॉजिटिव हैं टुवर्ड द स्पीकर, एंड रिमेन पर्पसफुल थ्रू आउट द स्पीच सेशन, और वो बहुत ही फुल ऑफ पर्पसेस रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं. द लिसनिंग बाय द ऑडियंस इज सेट टू बी डैश लिसनिंग. अगर आपका लिसनर जो है, आपका ऑडियंस जो है, आपकी स्पीच का पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, तो किस किस्म की लिसनिंग कर रहा है? सिलेक्टिव, परसेप्टिव, एक्टिव, नन ऑफ द अबव. हो गया. चलो नेक्स्ट है जी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट इज. देखो एक मैं छोटी सी बात बताऊं, फिर वही बात है. कुछ टॉपिक्स है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक है, और आपको मैंने जो होती है विजुअल्स के ऊपर, विजुअल एड्स या विजुअल्स के ऊपर आपको मैंने एक टॉपिक करवाना है, जो इनडायरेक्टली आपके प्रेजेंटेशन टॉपिक के साथ भी रिलेट कर जाएगा. ठीक है, तो ये टॉपिक हमने करना है. तो लेकिन ये वाले सवाल कुछ थोड़े जनरल हैं. आप इसका जनरल नॉलेज के मुताबिक आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफी दिनों से हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं. वी गेट एन आइडिया कि क्या आंसर होना चाहिए इसका. तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना माहौल. ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, तो ये क्या चीज है? कीपिंग अ स्ट्रिक्ट टैब ऑन एम्प्लॉइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, क्या उनके ऊपर कंट्रोल रखना है? स्ट्रिक्ट टैब का मतलब है उनको कंट्रोल रखना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनको पकड़ के रखो ध्यान से. ठीक है. या असाइनिंग डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन को आप क्या कहते हो? मैंने आपको एक दफा पहले भी किसी लेक्चर में बताया, उन्हें कहते हैं जेडीज. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शंस टू ऑल एम्प्लॉइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कि आपने लोगों को जेडीज बता दिए सारे एम्प्लॉइज को, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा. ओके फाइन. तीसरा, यूज ऑफ टेक्निक टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या ऐसी आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट का डिजायर्ड रिजल्ट निकल आए, या ऑल ऑफ द अबव. आंसर आप करके देखें अपनी सेंस के साथ, अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ. अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस क्या होता है? बचना. इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं कर रहे, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं. उसको, इसको बेस्ट डिफाइन क्या कर सकते हो? इसका क्या मतलब है? यूजिंग कॉन्फ्रंटेशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है? किसी चीज का आमना सामना करना. क्या हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते वक्त आमना सामना कर रहे हैं? विथड्रॉल फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं? बोथ ऑफ द अबव, दोनों काम कर रहे हैं, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं कर रहे? तो आप क्या कर रहे हो? अवॉइडेंस कर रहे हो. आप खुद ही समझ लोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. बहुत ही कॉमन सी बात है. जी एक और आ गया आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. मिस्टर हसन इज अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एट स्मूथ कंस्ट्रक्शन, एक कंपनी है.
His firm has submitted a proposal. आपने प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल पढ़ लिए हैं मेरे से. मैंने आपको बताया था कि बिजनेस प्रपोजल जो होते हैं वो आप किसी काम को अंडरटेकिंग के लिए उसको कोटेशन भेजते हो और कहते हो कि मैं ये काम इतनी देर में कर लूंगा. His firm has submitted a proposal in response to a tender by the local government to construct intercity roads. तो आपने एक टेंडर को के जवाब में, जो आपको एक रिक्वेस्ट आई थी उसके जवाब में एक ऑफर आई थी, आपने प्रपोजल सबमिट कराया किस लिए? इंटरसिटी रोड्स की कंस्ट्रक्शन का. In this regard, he has been asked to brief the representative of local government. अब मिस्टर हसन को बुलाया गया कि वो आकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के, तुम मार्केटिंग मैनेजर हो, तुम लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उसके जो लोग आके बैठे हैं, उनको अपना बताओ कि ब्रीफ करो, बताओ कि क्या क्या तुम करोगे, कब तक होगा. मिस्टर हसन हैज टू गिव अ स्पीच टू सेल हिज प्रपोजल. अब यहाँ पर सेल हिज प्रपोजल का मतलब क्या है? क्या वो अपना प्रपोजल बेचने लगा है? इसका मतलब ये है लोगों को इसके बाद, इस सेल कहते हैं कि आप मेरी बात से कन्विंस हो जाएं. ठीक है, वो कन्विंस करने लगा, मार्केटिंग करने लगा है. द सेड स्पीच, ये जो ऊपर स्पीच जिसका जिक्र आ रहा है बाय मिस्टर हसन, विल बी अ डैश स्पीच. आप देखिए, इंफॉर्मेटिव होगी, कंपनी स्पेसिफिक है, परसुएसिव है, नन ऑफ द अबव. ठीक है, हो गया. $35 question. For making a successful, informative and persuasive speech to a large number of audience, it is essential for speakers to use supports for their arguments. Doing so, यानी वो क्या करेगा? स्पीकर सपोर्ट करेगा और आर्ग्यूमेंट्स को अपने के जरिए करेगा. तो डूइंग सो, इससे क्या फायदा होगा? Increases the credibility of the speaker. Credibility, काबिले एतबार होना. Demonstrates the rational thinking behind the speaker's thought process. Demonstrate का मतलब है शो करना, rational का मतलब है अकल, दलील. अकल और दलील वाली थिंकिंग स्पीकर की थॉट प्रोसेस के पीछे वो ये शो कर रहा है. Helps the audience to accept speakers ideas, या वो ऑडियंस को हेल्प कर रहा है ताकि वो स्पीकर्स के, यानी स्पीकर के आइडियाज को वो क्या करे? एक्सेप्ट कर ले. या ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू रीजंस. आपको क्या लगता है? टेक अ टाइम, थोड़ा सा 1 सेकेंड, यानी आप इसको पहले सोच लो और फिर लिखो. ओके, 36 पे आ जाइए. ये वाले सवाल आपको मैंने बताया 3 सवाल हैं जो अगर आपको आ गए तो क्या बात है, नहीं आए तो इसको टॉपिक को हम अगले वीक में करेंगे. यहाँ लिखा है टू प्रेजेंट एन एनालिसिस ऑफ ट्रेंड ओवर टाइम, ट्रेंड्स ओवर टाइम, ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, इट इज रिकमेंडेड टू यूज कौन से वाला ग्राफ? आपने किसी लेवल पर स्कूल में या कॉलेज में या जो लोग जॉब पे हैं वो यकीनन उनको कहीं ना कहीं ग्राफ शायद बनाने आते हो. आप देखिएगा कौन से वाला ग्राफ बनेगा? लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार चार्ट. ठीक है, आइडिया लगा लें, कर लें. उसके बाद है द बेस्ट वे टू शो हाउ पार्ट्स ऑफ अ होल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ, हाउ द होल कंप्लीट, किसी चीज का कंप्लीट एरिया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन से चार्ट के जरिए करते हो? जी, आपने, मुस्कान का जवाब है 36 से और फिर 37 बी. अभी चेक कर लेते हैं. ठीक है, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड. 38. A graph on which the vertical axis represents amount and the horizontal axis represents time is a, कौन से वाला? बार, पाई, लाइन या फ्लो चार्ट?
अच्छा ठीक है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। द कैंडिडेट हैविंग अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ करियर ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन, जिसके करियर ग्रोथ जो है उसमें प्रोग्रेस है, वो कौन से वाला सीवी यूज करेगा रेज्यूमे? मैं अभी आपका चेक कर लूंगी, पुराने नोट्स जो आपको मैंने भेजे हैं उसमें मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये सीरीज बताए हुए हैं, बिल्कुल बताए हुए हैं, लेकिन आप एक दफा रिवाइज भी करेंगे इसको। तो आपका जो आंसर है मैं चेक कर लेती हूँ। आपने कहा है 38 का आंसर सी किया आपने, अच्छा, और 39 का नहीं किया, नहीं, ओके। तो आपके पास 39 का आंसर क्या है, लगा लें, 40 लास्ट है। 40 में इन अ सीवी द प्रीवियस वर्क हिस्ट्री एंड क्वालिफिकेशंस आर प्रेजेंटेड इन द सब्सीक्वेंट सेक्शन। सब्सीक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाला, ठीक है। वर्क हिस्ट्री क्वालिफिकेशन को बाद में, फ्रंट पे नहीं लेके आते, पीछे लेके आते हैं। वो कौन सा सीवी होता है? इसमें देखिए, फंक्शनल, क्रोनोलॉजिकल, रेज्यूमे, ऑल ऑफ द अबव। चले जी, आंसर्स पे जाते हैं। यही वाले सवाल है हमारे पास और हम आंसर्स चेक कर लेते हैं। जी, अच्छा, बिफोर हम इसको पढ़ें, आपको मैं एक छोटी सी बात बताने लगी हूँ, वो जरूरी है। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे, जब उन्होंने कहा शुरू में ही, उनको बड़ा था कि हमें मिस गाइड कर दे, हमने स्टार्ट किया है आईसीएमए से, तो क्या इस पे टाइम ज्यादा लग जाता है या इसको लोग कर नहीं पाते? देखिए, बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन को लेने वाले लोग, उनका ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा ग्रूम करना बहुत जरूरी है। समझिए मेरी बात को। सिर्फ अगर आप ये कहें ना कि किताब पढ़ ली मैंने, और बुकवर्म, वो तो बुकवर्म नहीं होते जो कीड़े छोटे छोटे सिल्वर कलर के, सिल्वर फिश भी जिसे कहते हैं, वो भी तो किताबों के अंदर ही रहते हैं। तो करना हमने क्या है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। नए नए अल्फाज सीखिए, नए नए चीजों के बारे में नॉलेज लीजिए। मैं कई दफा स्टूडेंट्स को ये भी तक कहती हूँ, सब लोगों के इख्तियार में तो नहीं है ना कि मैं आपको कहूँ, अच्छा बच्चों, अब तुम लोग क्या करो, सारे लोग स्टूडेंट सारे, अब अगली छुट्टियों में ना तुम लोग स्विट्जरलैंड चले जाना। अच्छा, कैसे देना मिस, आप टिकट फिर भेज दें हमें? जवाब तो ये होना चाहिए ना। तो करना ये है कि जिनके पास, जो नहीं कर सकते हम लोग ये सब कुछ, लेकिन हमें उन जगहों का, उन चीजों का नॉलेज जरूर होना चाहिए। आया ऐसा क्या है स्पेन में, लोग क्यों स्पेन जाते हैं, लोग इजिप्ट क्यों जाते हैं? मुझे उसके बारे में क्या पता है, उसके कल्चर के बारे में, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनकी जगहों के बारे में क्यों पता है? लोग आईफल टावर क्यों चढ़ते हैं, क्यों देखना चाहते हैं? तो घर बैठे तुम्हें कम से कम पता तो हो ना। जब तुम्हें हर चीज का पता होगा ना, जहन खुलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे मेमोरी पार्ट ऑफ द ब्रेन के मसल डेवलप हो जाएंगे, और तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि तुम दुनिया में कोई भी किताब पढ़ोगे, तुम्हें फौरन समझ आ जाएगी, तुम्हें फौरन याद रहेगी, तुम्हें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ना ही तुम अपने आप को फील करोगे कि मैं तो किसी जमाने में बड़ा कुंजहन होता था, मुझे याद ही नहीं पड़ता था, अब तो मुझे सब याद हो रहा है। इसका सिर्फ यही तरीका है कि आपने अपनी मेमोरी पे प्रैक्टिस की है। जिस चीज पे प्रैक्टिस करते हो वो आ जाती है। तुमने गाना सीखना है, तुम्हें गाने का रोज रियाज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात समझ रही हूँ। म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक बजाना पड़ेगा। तुमने कोई टेक्निकल काम सीखना है, एक दिन में नहीं आएगा तुम्हें। प्लम्बर्स हैं, ये जो जैसे मैं भी अब वो कहती हूँ ना कि मेरे पीछे से आवाजें इन लोगों की आ रही होती हैं, बिकॉज अब सर्दियों में जरा एसी वगैरह बंद है ना, तो शोर जो है वो बाहर का ज्यादा आता है हमें। तो ये लोग एक दिन में थोड़े बन जाते हैं, उनमें से भी कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। तो प्लीज, और मेरा ये जो मैंने जो स्टेप लिया है ना, साथ साथ ही मुझे समझ में आ गया कि काफी आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो गया है पढ़ने वाला, वो आप पढ़ते जाएं, उसको निशान लगाते जाएं। आपके पास सॉफ्ट में मटेरियल है,
वहीं पे हाईलाइट करते जाएं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। और बाकी आपको वोकैबुलरी ठीक हो, आपको नॉलेज हो, उसके लिए ये आप मेरे साथ एमसीक्यूज कर रहे हो, और फिर वो टॉपिक पे भी करेंगे एमसीक्यू जो एग्जैक्टली हमने शुरू के दिनों में पढ़े हैं। 7 C's के टॉपिक है, जनरल कम्युनिकेशन के टॉपिक हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ उसके टॉपिक्स हैं, वो सारा कुछ मैं आपको साथ साथ यानी कराती जाऊंगी। आंसर नंबर 16 है ऑल ऑफ द अबव। आपने कहा था इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी, आपने अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है आज की कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या करो उसकी करनी है। बिकॉज क्योंकि वर्कफोर्स इज गेटिंग मोर डाइवर्स डे बाय डे। यहाँ बाय द डे लिखा हुआ है, डे बाय डे था उसमें, हर दूसरे वाले में यही लिखा हुआ था डे बाय डे, कि हर रोज जो आपकी वर्कफोर्स का क्या बताया था मैंने आपको, काम करने वाले लोग, डाइवर्स का बताया था, वैरायटी हो रही है। द वर्ल्ड इज टर्निंग श्रंकन ग्लोबल विलेज बन चुकी है, बिल्कुल सही। एडवांसमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इज डिक्रीजिंग फिजिकल डिस्टेंस, इससे हमारा फिजिकल डिस्टेंस खत्म हो रहा है। तो आपको दूसरे कल्चरल इंप्रूविंग इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपकी कंपनी चलती रहे। और आप यकीन करें, जब मैं ट्रेनिंग्स कराती हूँ तो लोग बहुत बहुत तरह की मिसालें देते हैं। एक साहब बता रहे थे अभी कि कुछ देर पहले, बल्कि वो हमारे को गेस्ट आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि दुबई में वो किसी बैंक में बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, तो उनकी जो उनका जो बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग है। आपको पता है ये सबको, दुबई में या और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत रवाज है ना, हदीस में भी आया है ना कि मुसलमान ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे क़यामत की निशानियों में से। बड़ी है तो परेशानी वाली बात, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, काफी उसके मंजिलें हैं। तो वो बताते हैं कि क्या होता है कि 3rd फ्लोर पे और एक 11वें फ्लोर पे दोनों ब्रिटिश हैं। जो 3rd फ्लोर पे है वो एक काफी बूढ़े आदमी है, उनकी पूरी फैमिली इधर ही रहती है दुबई में, और उनकी बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ती हैं, आ भी जाती हैं छुट्टियों में अपनी अब्बा अम्मा के पास और चली भी जाती हैं, और पुरानी है वहां पे। और जो लड़की एक नई हायर हुई है वो बर्तानिया से है, वो भी ब्रिटिश है, वो 11वीं मंजिल पे है। चाहे छोटा सा ब्रेक आए चाय का, चाहे खाने का, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वो बाद में ये भी पता है उनको कि कभी कभार फैमिलीज यानी उसकी जो बूढ़े अंकल हैं उनकी मिसेज उनको पिक भी करनी आती है, उसके भी गले लग रही होती है लड़की के भी, यानी वो एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आदत हो जाती है कि आप अपने यानी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी से जब आप एनकाउंटर करेंगे तो आपको क्या है, आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। आपने इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी को आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। आपने ये नहीं बुरा मनाना, तुम बॉस हो, तुम कहे ये क्या उठाकर मुंह उठा के 11वीं मंजिल से 3री मंजिल पे आ जाती है, चलो वापस चलो अपनी सीट पे। इस तरह कोई नहीं कर सकता, इस तरह लोग काम भी नहीं करेंगे आपका, ठीक है। और आप यकीन करें, जैसे दुबई इज अ हब बिजनेस का, वहां पे हर तीसरा क्या, हर दूसरा बंदा कहीं आपको कम, क्योंकि उनके नेटिव्स तो कम है, अरबी कम नजर आते हैं, खवातीन मर्द, ज्यादातर आपको बाहर के लोग फॉरेनर्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं। इस तरह आप बाकी कंट्रीज हैं जहाँ पे इमिग्रेशन हुई है, कनाडा, अमेरिका, नंबर 1 पे अमेरिका, कनाडा में बहुत ज्यादा, इधर ब्रिटिश यूरोप के अंदर आपको इतनी वैरायटी के लोग मिलते हैं, इतनी वैरायटी के लोग मिलते हैं, नई ब्रीड्स के, नई नस्लों के, नए इलाकों के सब लोग मिलते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता, हमारा मुल्क चूंकि तरक्की याफ्ता ही नहीं है, तो हम बहुत कम अगर किसी को देखते हैं तो हमें ज्यादातर जो लोग नजर आते हैं वो चाइनीज ही नजर आते हैं, जो कि अब सी पैक की वजह से हो सकता है कि ज्यादा उनका जो है ज्यादा हो जाए। तो ये आपको बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। आई कांटेक्ट जो है ना, आपको बताऊं, ये मैंने पूरा सवाल पढ़ा था। आई कांटेक्ट जो है ना, यूएस कंट्रीज में अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन ना करें तो लोग कहते हैं तुम डिसऑनेस्ट हो। अगर तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, चाहे तुम इससे छोटे हो या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम नहीं आंखों में डालोगे तो तुम डिसऑनेस्ट हो।
तो आंखों में आंखें डालना ऑनेस्टी की निशानी है, लेकिन मुस्लिम लोग कहते हैं रूड है, रूडनेस की निशानी है। हमें सिखाया जाता है ना कि कहा जाता है अपनी आंखें नीची करो, ठीक है, सिखाया जाता है ना कि आप अपनी आंखें जो है वो नीची करें। तो ये वाला जो है इसमें आपके पास रूड आपका बिहेवियर है, रूड आंसर है। ये अंडरलाइन हुआ है, आपको हाँ नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ फिर। जी अब 18 क्वेश्चन देखिए। Communication breakdown in a multicultural organization setting is a result of dash. एक multicultural organization है, अगर उसमें बहुत ज्यादा कल्चर के लोग हैं, टेक्निकल इशू नहीं, लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज नहीं, ग्रामेटिकल इशू नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग इन कल्चर, आपका कल्चर में समझ नहीं आपको आई, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन इसलिए आया कि आपको दूसरे के कल्चर की समझ नहीं आई है, ये वजह है। उसके बाद है सक्सेसफुल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कैन बी इंश्योर्ड बाय, आपने इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को आपने इंश्योर करना है, तो आप कल्चर के बारे में मालूमात हासिल करें। और जब भी हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब आप किसी मुल्क में जाना चाहें, आप ये वैसे बात याद रखिएगा, कभी भी आपको किसी और मुल्क में जाना हो, इवन किसी इलाके में जाना हो, तो वहां के बारे में पता करके जाएं, वहां क्या ट्रेंड है, क्या तरीका है, ठीक है। बी ओपन टुवर्ड्स अदर कल्चर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन कल्चर, हमें दूसरे कल्चर्स के बारे में ओपन रहना चाहिए, हमें बायस्ड नहीं होना, हमें स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी, ये आपको सिखाया है मैंने। अंडरस्टैंडिंग दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन कल्चर, और ये भी देखना है कि लोगों के कल्चर के बीच में फर्क होता है एंड ऑल ऑफ द अबव। ये हमें यहाँ पर ये बात हमें समझ आई कि सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टुडे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर, इंटरपर्सनल स्किल्स की बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हो गई। अब बात किस चीज की है, गौर करना, इंटरपर्सनल स्किल्स। दिस रिजल्ट इन देयर वर्कफोर्स बीइंग मोर प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड, ये आएगा जवाब। अब इंटरपर्सनल है या इंटरकल्चरल नहीं है, इंटरपर्सनल की वजह से, क्योंकि वर्कफोर्स ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई है, मोटिवेटेड हो गई है, आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ाना है ताकि आप लोगों को ज्यादा मोटिवेट कर सकें, उनके आप मसाइल को समझ सकें और उनकी बात कर सकें, ठीक है जी। और ठीक है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट है, उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवाल ठीक होंगे इंशाल्लाह, और यही तरीका आपका सेट हो जाएगा तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एग्जाम में बैठकर सही परफॉर्म नहीं करना आता, ठीक है। 21 आपके पास सवाल है जिसमें आपने कहा कि मैनेजमेंट गुरु, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने बहुत सी रिसर्चेस के बाद ये बताया कि एम्प्लॉयज जो है अपनी जॉब को क्यों पसंद करते हैं, पता है आपको? क्योंकि सपोर्टिवनेस ऑफ वर्क एनवायरनमेंट होती है। हाई सैलरी की वजह से नहीं करते, मेरे बहुत पैसे मिलते हैं ना। फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स किसे कहते हैं? पर्क्स को। पर्क्स जैसे कि आपके पास चॉकलेट पर्क है ना, PERK, इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको जैसे फ्यूल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिले, आपको घर का किराया मिल जाए, बच्चों की फी मिल जाए, तो उसे फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, या उसे अलाउंस वगैरह कहते हैं। इसके बाद है एथिकल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। एथिकल मीन तमीज का मुजाहरा करना फॉर द मैनेजर्स ड्यू टू, फिर वही प्रॉब्लम, लोगों को ज्यादा मोरालिटी का मिक्सचर हो जाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं और वेरिंग फैमिली वैल्यूज के लोग होते हैं। आपको ये भी पता है इस चीज का कि जो लोग डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं, आपने देखा है ना, आपने अपने जो लोगों का एक्सपीरियंस कॉलेज स्कूल का है, जिनका एक्सपीरियंस अपने ऑफिस का है, आप यकीन करें आप चंद दिन ऑफिस में बनावट कर पाएंगे, उसके बाद आप वही होंगे जो आप सीख के आए हो। आपके घर का माहौल, आपकी फैमिली की वैल्यूज, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है, बहुत ज्यादा। अनलेस until you have
create control on it and you got an idea कि भाई मेरे तो फैमिली को पता ही नहीं था, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो आपने खुद अपनी वैल्यू सेट की है। बहुत सारे लोगों को मैं अपने करियर में ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्या किया है। जी आपके ठीक है मुस्कान, आपने मेरे ख्याल है आंसर्स जो लगे हैं वो बता रही हो, आपने सी क्वेश्चन आप बता रहे हो, 23 का सी आप बता रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ, 1 मिनट। तो आपका जो है वेरिंग वैल्यूज जो है ना वो है इस ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि डाइवर्सिटी है आपके वर्कफोर्स के अंदर। एथिकल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है इन तमाम रीजंस की वजह से। इन रियल वर्ल्ड डिसीजन टेकन इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट परफेक्ट बिकॉज पता क्या वजह होती है, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती। ओनली रीजन बी लैक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये गलत है, वैसे ही गलत, आपको समझ आ गई है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन लैक डिसीजन मेकिंग स्किल, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो अगर कोई मैनेजर है जिसने डिसीजन लेना है, उसके अंदर अगर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है ना, तो वो ज्यादा देर अपनी जॉब पे नहीं रहेगा, फारिग हो जाएगा। तो आप ये समझें कि लोग कॉम्पिटेंट हैं, सिर्फ अक्सर ऐसा होता है कि जब वो डिसीजन नहीं कर पाते तो उनकी एक्सेस नहीं होती पूरी इंफॉर्मेशन पर, ये वजह होती है। 24 के अंदर आपने किया एक्सपर्टीज इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद ए आंसर ability to assess the known in different wider perspective। जो चीज आपको मालूम होती है उसको और मजीद फैलाव में आप उसको कंसिडर करती है। मिसाल के तौर पर क्रिएटिव थिंकर ये करता है, आपने उसको एक डिजाइन दिखाया, वो ये नहीं कहेगा ये डिजाइन अच्छा या बुरा, वो कहेगा इसे बेहतर बन सकता था और ये ऐसा बन जाना चाहिए था। यानी वो वहीं पर रुककर क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग शुरू कर देगा और वाइडर पर्सपेक्टिव में थिंकिंग शुरू कर देगा। हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, लेटरल थिंकिंग, यानी आपने मजीद उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया बजाय ये कि उसका कुछ एनालिसिस करे। इसलिए बाकी वाले वैसे ही गलत थे, लैंग्वेजेस लर्न करना वैसे रेलेवेंट नहीं थे। 25 में आ गया द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव, क्या क्या होता है। क्रिएटिव थिंकर सब्जेक्टिव होता है, अपनी पसंद लगाता है। क्रिटिकल थिंकर ऑब्जेक्टिव होता है, वो अपनी पसंद नहीं लगाता, जो चीज आप उसको देते हो उसका एनालिसिस करता है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक अच्छे मैनेजर को क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए या क्रिएटिव, तो आपका जवाब होगा बोथ, दोनों होने चाहिए। वो कैसे, मिसाल के तौर पर आपका जूनियर है, वो एक रिपोर्ट आपको बनाकर देता है, आप पहले रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें कितनी गलतियां हैं, ठीक है, और फिर उसको ठीक करके बताएंगे कि भाई देखो यहां पर ये लगा दो। तो आप जो गलतियां निकालोगे आप क्रिटिकल हो, आप उसको ये लगा दो कहेंगे तो आप क्रिएटिव हो। और क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर एनी रिकॉर्ड, बिल्कुल सही, दो धारी तलवार का काम करती है, क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग ए आंसर। कॉन्फिडेंशियलिटी, एक धार है कि मैटर कॉन्फिडेंशियल रहेगा, यानी आपका क्या कॉन्फिडेंशियल कहती है, राज रहेगा, बट द सेम टाइम प्रिवेंट्स रिकॉर्ड रिटेंशन। रिकॉर्ड रिटेंशन मीन आप उसका रिकॉर्ड भी नहीं रखते मैसेज का, और क्या होगा, पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, यही फायदा हो गया, बाकी गलत है। पर्पस, क्रक्स, आपको ये बात पता है पर्पस कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, क्रक्स कहते हैं किसी बात का निचोड़, इसलिए ये कोई भी लफ्ज इसमें नहीं आएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिकॉर्ड रिटेंशन। नेक्स्ट है पॉइंट, इफ द टारगेट ऑडियंस, जब आपके डिस्पर्स हो जोग्राफिकली, तो आप कौन सी कम्युनिकेशन करोगे, रिटर्न, ताकि आप ईमेल कर दो उनको, ठीक है, और वो जब कन्वीनियंट होगा। एक बंदा जोग्राफिकली डिस्पर्स है, आप पाकिस्तान में है, सुबह है, वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, तो क्या है वो अपने टाइम के मुताबिक देख लेगा।
ठीक है। इसी तरह जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, 2 घंटे का हमारा ज्यादातर फर्क है वहां पे। तो अगर आपका ऑफिस 5 बजे तक है तो उनका तो टाइम जो है अभी चल रहा है ना, आप 5 बजे भेजेंगे, उसके भी 3 बजे देख लेगा। ठीक हो गया ना। तो ये आपका रिटर्न होता है जब ज्योग्राफिकली लोग इधर उधर बिखरे हैं। यहाँ पर जी बहुत आसान था। प्रीसीडिंग द मीटिंग आपका कौन से वाला रिटर्न फॉर्म होगी? एजेंडा। आप एजेंडा मीटिंग से पहले लिखते हो और मीटिंग के बाद मिनट्स लिखे जाते हैं, ये आपको पता है इस बात का, है ना। और मिनट्स की टाइप्स भी आपको बतानी है। 29 है, ये बहुत आसान सवाल था। मीटिंग को प्रिजाइड करने वाले को चेयरपर्सन या चेयरमैन कहते हैं, बाकी गलत है, मीटिंग एग्जेक्टिव नहीं कहते। मिस हिना को बुलाया गया कि तुम आके तकरीर करो, बात बताओ, और उसे पहले से तैयारी नहीं थी, तो उसने अब डिलीवर जो करनी थी ना, आपको बता देती हूँ, हमारे पास 4 तरह की स्पीचेस होती हैं। एक स्पीच को कहते हैं मेमोराइजेशन, रट्टा लगा के बोलना। आपने क्या किया? आपने एक डिबेट स्पीच कंपटीशन में गए हो, तुमने घर से टॉपिक पे तैयारी की हुई है, तुम जाके वही बोलोगे ना जो जिसकी तैयारी की हुई तुमने, मेमोराइजेशन। रीडिंग, जैसे कि हमारे बेचारे जो ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको बस सामने लिखा हुआ ही पढ़ना आता है, तो वो सामने लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं न्यूज कास्टर की तरह, उसे कहते हैं रीडिंग। अब उसके पास कोई मटेरियल ही नहीं, मिसेज हिना के पास रीडिंग करेगी। अब एक्सटेम्परेनियस होता है, एकदम से किसी को पुकारना और वो आकर स्पीच कर दे। और इम्प्रॉम्प्टू थोड़ा सा बेहतर तरीका है, इसमें आपके पास पहले से कुछ नोट्स होते हैं, उनकी मदद से आप तकरीर करते हो, पॉइंट्स लिखे होते हैं, आप उसके मुताबिक तकरीर करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि आपके पास एक प्रेजेंटर आता है, उसको पता है कि मैंने इन इन टॉपिक पे तुम्हें बताना है, या एक टीचर तैयारी करके आता है, उसमें पॉइंट लिखे होते हैं कि मैंने इस पॉइंट पे बात करनी है, तो वो उसको हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। अब ये भी मैं समझा देती हूँ एक और चीज, इम्प्रॉम्प्टू राउंड्स अक्सर स्पीच कॉम्पिटिशन्स में होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी पहले तैयारी होती है, लेकिन आप जाकर फिर बोलते हो। आपको 2 मिनट टाइम दिया जाता है, उसमें आप पॉइंट्स लिखते हो, उस पॉइंट के ऊपर आप तकरीर करते हो, उसे भी इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। कुछ किताबों में इम्प्रॉम्प्टू एंड एक्सटेम्पोरेनियस दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। इसके बाद है जी, इफ द ऑडियंस ऑफ द स्पीच जो है, अगर आपको पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। हर चीज पॉजिटिव होगी तो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, पूरा सुन रहे होते हैं, सर हिला रहे होते हैं। सिलेक्टिव करेंगे, इसका मतलब पता क्या है? कि वो अपनी पसंद नापसंद पे चीजें सुनेंगे। परसेप्टिव लफ्ज ही नहीं यहाँ पर फॉल कर रहा, परसेप्टिव होता है किसी चीज को परसीव करना, एक्टिव इज द ओनली आंसर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट इज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? यूज ऑफ टेक्निक टू अचीव डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं आपको इसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगी अगले वीक में, मैंने ये नोट किया हुआ है, आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। कॉन्फ्लिक्ट को आपने मेंटेन रखना है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इतने ना हो कि लड़ाई इतनी हो जाए कि लोग जंग करें। तो आपने डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे 2 लोग होंगे उनकी आपस में जरूर कोई ना कोई खटपट होएगी। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की किताबों में लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करो, ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट यानी खत्म नहीं कर सकते। तो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ाऊंगी। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का एक तरीका होता है, इसमें विथड्रॉल फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर चले जाते हो, आप उसका सामना नहीं करते हो, इसे अवॉइडेंस कहते हैं, अवॉइड करना, और ये गलत तरीका होता है। 34 में आपने देखा कि आपने प्रपोजल को सेल करना है, तो आप परसुएसिव स्पीच करोगे। परसुएसिव मीन कन्विंसिंग, ठीक है। सेल करने वाली चीजें हमेशा परसुएसिव होती हैं। आपको मैंने आइडा प्लान भी सिखाया था, आइडा फॉर्मूला, एक दफा फिर मैं रिवाइज कराऊंगी आपको सारा। फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल इंफॉर्मेटिव परसुएसिव स्पीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, आपने क्या करना है? डूइंग सो,
आपने लिखा है इट इज एसेंशियल फॉर स्पीकर टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट, टू यूज सपोर्ट्स फॉर देयर आर्ग्यूमेंट, उसके लिए इस्तेमाल करेगा। क्यों? इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, डेमोन्स्ट्रेट द रैशनल थिंकिंग भी को करता है, हेल्प ऑडियंस टू एक्सेप्ट स्पीकर आइडियाज एंड ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू रीजंस। ये सारी रीजंस होती हैं ताकि लोग उस पर बिलीव कर सकें। आज तो हमारे, मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पे हम कर चुके हैं ज़्यादा। हमारी टाइम जो है तकरीबन अब निकल गया और 4:32 हो चुके हैं, 4:40 तक हमारा टाइम है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको चीज़ें सारी भेजती हूँ, आप कल तक इसको रीड कर लेना ताकि हम कल जो पढ़ेंगे फिर वो वहां से नए सिरे से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है? कल और परसों में फिर आपको मिक्स चीज़ें पढ़ाती जाऊंगी और फिर आपको मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि अगला वीक भी तकरीबन ऐसे ही गुजरेगा, लेकिन आपको साथ साथ आपको कराती जाऊंगी ये जो एमसीक्यूज हैं, लेकिन उससे आगे फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे चीज़ों में। ठीक है? और साथ ही फिर मैं आपको स्केड्यूल भी बताऊंगी जिसमें हम शुरू हो जाएंगे। लेटर्स भी करना, कोई ना कोई लेटर उठा के आपसे पहले मैं डिस्कस करूंगी। आई वुड गिव यू सम टाइम टू स्टार्ट इट। आप करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ये सारे नोट्स और चीज़ों को आप तैयार रखिए और फिर हम इसकी काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है? और अभी मैं आपके मैनेजर से बात कर लूंगी कि अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई, जो 16 नवंबर को शुरू होने वाला मेरा जो वीक है उसमें मेरे पास ज़्यादा दिन अवेलेबल है, उसमें मेरी कुछ क्लासेस जो हैं ट्रेनिंग की ऑफ है, तो मैं आपसे चेक कर लूंगी कि मैं आपको फ्रीक्वेंटली यानी वीक में ज़्यादा दिन पढ़ा दूं ताकि आपके टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हम आपके अभी आवर्स काफ़ी पड़े हुए हैं, तो आपके टॉपिक साथ साथ जस्टिफाई हो जाएंगे। एटलीस्ट हम ज्यादा एमसीक्यूज कर लेंगे और ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 36 का आंसर है लाइन ग्राफ। आप में से कुछ मुस्कान ने भी आंसर लिखा था, इसका आंसर लाइन ग्राफ है, जिसमें आपने गिवन पीरियड टाइम पर ये करते हो। और उसके बाद था पाई चार्ट। पता क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी। विजुअल्स होते हैं जिसमें एक सर्कल में पाई की शक्ल का सर्कल होता है और उसमें कटिंग करके आप उसकी परसेंटेज दिखाते हो, ये कितने परसेंट आपने उठाकर चेक करना होता है। 38 जो है उसमें क्या है कि आपकी अगर एक्स एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस जो है रिप्रेजेंट अमाउंट, हॉरिजॉन्टल जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बार ग्राफ के जरिए करते हैं, ये मैं आपको डिटेल पढ़ा दूंगी। 39 का आंसर था क्रोनोलॉजिकल सीवी। वो कौन सा होता है जिसमें सॉलिड आपका रिकॉर्ड होता है करियर ग्रोथ का, आपने प्रोग्रेस की होती है। लेकिन जो 40 है उसमें फंक्शनल है, क्योंकि फंक्शनल में स्किल्स आप पहले दिखाते हो और अपना प्रीवियस हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री बाद में दिखाते हो सब्सीक्वेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर है ये फंक्शनल। और आपको तंग करने के लिए वैसे लफ्ज रेज्यूमे लिखा है, क्योंकि रेज्यूमे एंड सीवी आर द मोस्टली सेम थिंग्स। ठीक है? तो ये इसका जो आंसर हुआ। और अभी मुस्कान कह रही है कि मेरे 23 क्वेश्चन राइट एंड 2 रॉन्ग है। परफेक्ट परफेक्ट। और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका ऐसे हुआ होगा इंशाल्लाह। इससे मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे आपको हैंडल करने का तरीका आ जाएगा। और फिर कभी नहीं हो सकता कि आप मुझे अभी भी आपका रिजल्ट जिनका आया है बच्चों का, कुछ लोगों ने मेरे स्टूडेंट नहीं थे लेकिन वैसे ही मैंने उनसे फीडबैक लिया है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो बच्चे 47, 48, 49 पे फेल हो जाएं खुदा ना खास्ता, वो असल में क्लियर नहीं होते, वो टॉपिक्स पे क्लियर नहीं होते, उन्हें अटेम्प्ट करना नहीं आता और फिर वो जब ट्राई करते हैं तो किसी का सही लग जाता है और किसी का नहीं लगता। ठीक है जी? अली असकर कह रही है मेरे 15 सिर्फ करेक्ट हुए। कोई बात नहीं, आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हो सकता है अली असकर कि आपने पहले नोट्स ना पढ़े हो या आपने लेट ज्वाइन किया हो, तो मैं जब आपको टॉपिक वाइज करा दूंगी ना फिर आपकी बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी। लेकिन ये ठीक नहीं है। आप चेक करो अली असकर कि आपने क्या चीज मिस की है। जब मैं आपको गाइड करी थी तो आपको क्या लगा है कि आपके जवाब जो थे वो ठीक नहीं आए, और आप ये उम्मीद ये करते हैं कि नेक्स्ट आपके आंसर जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी आपकी क्लासेस जो है कल परसों भी 3:10 से आपके 4:40 तक क्लासेस है, 1.5 घंटे की। अभी हम इसको इसी तरह ही चलते जाएंगे। कल हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा कवर कर लेंगे और फिर मैं आपको कल देखेंगे कि टाइम बचता है तो एमसीक्यूज करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, और परसों फिर हम एमसीक्यूज पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे। जी मैम, थर्सडे को और फ्राइडे को, बिल्कुल थर्सडे और नहीं नहीं, थर्सडे को क्लास सॉरी नहीं है। मैंने आपको क्या लिख के भेजा है? मैंने आपको लिखा है
फ्राइडे, ओके, शायद मैंने थर्सडे लिख दिया है। नहीं, आपकी क्लासेस जो हैं फ्राइडे सैटरडे संडे को है। मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। थर्सडे वाली नहीं है क्लासेस बिल्कुल भी, मैं इसको कर देती हूँ। बल्कि एडमन जो अगर सुन रहे हो तो आप जरा करेक्ट कर दो, और बाकी जो डेज हैं उसके मैं आपको इसको अपने ग्रुप में करेक्ट कर दो, और मैं दोबारा से देख लूंगी। जिसने मैसेज ना किया होगा तो फिर मैं क्लियर कर दूंगी। जी मैंने थर्सडे लिख दिया था गलती से, थर्सडे नहीं है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। तो आपकी क्लासेस जो है फ्राइडे और आगे सैटरडे और संडे को होगी क्लास, ठीक है। तो मैं आपको डेज करेक्ट करती हूँ। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में नमाज के बाद ये आपको ये वाले दोनों टेस्ट 1 टेस्ट 2 और आपको जो फिलर आपके जो हैं पार्ट ए जो आपका कंप्लीट हो गया आज, मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ध्यान से पढ़ा करें। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने अभी बस पढ़ा है निदा अवान, इन्होंने कहा मेरे 20 करेक्ट हुए हैं। परफेक्ट, ठीक है, अच्छा है, नॉट बैड। ओके जी, अल्लाह हाफिज।